Excuse me. Hey guys, good afternoon everyone. Excuse me. Hey guys, what's up? Hi everyone. Hello. A very good afternoon to all of you. Hi everyone. A very good afternoon to all of you. कैसे हैं आप लोग? So guys, are you enjoying the classes everyone? क्या आप लोगों को मजा आ रहा है क्लासेस करने में? Good afternoon Yasir. I hope you are able to see clear beautiful Himalayas since there is no pollution. Yes. देखिए, the skies are absolutely clear. We are able to see clouds. We are able to see stars. We are able to see the entire moon in the night and the way the moon shines. So that is something that we are not used to, but we can, at least in the Delhi NCR region, we are not used to, but now we can. So it has been a pleasure, a sort of a positive impact of COVID, I'd say. There's a positive impact of COVID on all of us. So I just hope that we value this positive impact and we maintain this. So basically, economy is inversely proportional to environment. I repeat, economy is inversely proportional to environment. अगर इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है तो आपका एनवायरनमेंट डेफिनेटली डैमेज हो रहा है. योर एनवायरनमेंट इज डेफिनेटली गेटिंग डैमेज बिकॉज इकोनॉमी विल ग्रो एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट. ऑलवेज रिमेंबर दिस. इस चीज को हमेशा याद रखिएगा. इकोनॉमी जो है वो हमेशा प्रकृति की कॉस्ट पे ही ग्रो करेगी. So guys, most of the students have joined in. Yes. Have you been enjoying the classes? आपको मजा आ रहा है क्लासेस में? आज हमारी थर्ड क्लास है. फर्स्ट टू क्लासेस में हमने काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर करे हैं और आज हम इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे. विल कंटिन्यू विद द सेम. So I hope that you have been enjoying the classes thoroughly. Yes. रितेंद्र सिंह, अंकिता कुलाब, आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जिनकी आज फर्स्ट क्लास है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सच दैट जिनकी आज फर्स्ट क्लास है? तो जिनकी आज फर्स्ट क्लास है, आप लोग डेफिनेटली, आपको एक एक चीज समझ में आएगी प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड, बिकॉज आई विल बी एक्सप्लेनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स टुडे. आई रिपीट, आई विल बी एक्सप्लेनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स टुडे. मैं बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स आज समझाने वाला हूँ. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू
that you orient yourself in terms of understanding and in terms of application. So, guys, can we start? Shall we start, everyone? Varsha, Astha, Rajbun, Keshav, Shikhar, Vishal, Rishi. All right, guys. So, this is the question. Please try and answer the question. Think of the right option and answer the question. बताइए जी, क्या आपको सही लग रहा है? Very good, Nilesh Sahu. All the people who are attending the class for the first time, and all the people who have attended the class previously, I welcome all of you to this wonderful platform. I hope you are enjoying the classes by me, my classes, as well as classes by other educators. आप सब लोगों की classes enjoy कर रहे हैं. I just hope that you've been enjoying the classes by everyone. Yes. So please try and answer this question. इस सवाल का जवाब दीजिएगा. Quantitative measures पूछे जा रहे हैं यहाँ पे. सबसे पहले तो मुझे ये बताइए क्वांटिटेटिव मेजर्स का मतलब होता क्या है? What do quantitative measures mean? क्वांटिटेटिव मेजर्स का मतलब ये होता है समथिंग दैट वेरीज द क्वांटिटी डायरेक्टली. जो क्वांटिटी को डायरेक्टली वेरी करे उसे क्वांटिटेटिव मेजर्स कहा जाता है. क्वांटिटी किस चीज की? क्वांटिटी मनी सप्लाई की. तो क्वांटिटी मनी सप्लाई की अगर डायरेक्टली मेजर होती है, अगर डायरेक्टली इंपैक्ट होती है, उसे क्वांटिटेटिव मेजर कहा जाता है. इट इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव मेजर. तो अब मैं आपको इन डिटेल मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव के साथ मॉनेटरी पॉलिसी के टूल समझाऊंगा. You will be able to understand every single thing with respect to monetary policy tools, quantitative tools with respect to monetary policy. Today's class will be the most productive class because you might just get 2 questions in prelims from today's class itself. आज की क्लास से ही आपको शायद 2 सवाल मिल जाए prelims में. So आज की क्लास बहुत ध्यान से सुनिएगा. Are you ready, everyone? Tell me, increase the energy levels. Give me a thumbs up, all the students. Take the count up to 5,000 likes. I want every single student to give me the thumbs up. Give me a thumbs up, and I want you to take the level of thumbs up to 5,000 likes. And tell me how the Josh is. How's the Josh, everyone? How's the Josh? Increase the energy levels. Tell me how the Josh is. Keep giving thumbs up, and please make sure that I have your undivided attention. Give me your undivided attention over here, so that we are able to understand all the aspects with respect to monetary policy. Monetary policy के सारे aspects हम समझेंगे. विशाल शर्मा, मैं समझा हिंदी में रहा हूँ, टर्मिनोलॉजी इंग्लिश की है. मॉनेटरी पॉलिसी को मॉनेटरी पॉलिसी ही बोला जाएगा. यस, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे पिंड है. आप इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. जितनी भी पीडीएफ्स मैं यूज कर रहा हूँ, आपको सारी पीडीएफ्स यहाँ पे मिल जाएंगी. यू विल फाइंड ऑल द पीडीएफ्स ओवर हियर. So this already has close to 4,300 members. आप जरूर सब्सक्राइब करें टेलीग्राम हैंडल को. टेलीग्राम हैंडल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा. वो बहुत यूजफुल रहेगा आप सब लोगों के लिए. प्लीज कीप गिविंग थम्स अप. जितने भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करते जा रहे हैं, सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है वो थम्स अप देंगे. So guys, monetary policy is a policy which is in the hands of the Reserve Bank of India. I repeat, monetary policy जो है वो RBI Reserve Bank of India के हाथ में है. Reserve Bank of India क्या करता है? monetary policy को vary करता है. I repeat, Reserve Bank of India monetary policy को vary करता है. vary करने का मतलब वो monetary policy को increase या decrease करता है जिसकी वजह से inflation पे impact. तो जिसकी वजह से इकोनॉमी के मनी सप्लाई पे इंपैक्ट हो, वो चीज आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा करता है. इसको मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, एमपीआर का नाम दिया जाता है. इट इज कॉल्ड एज मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू. सो व्हेन वी टॉक अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू के थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या चीज करने की कोशिश कर रहे हैं. आई रिपीट, व्हाट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्राइंग टू डू?
Reserve Bank of India is trying to regulate the money supply in the economy. I repeat, it is trying to regulate the money supply in the economy. When we talk about regulation of the money supply in the economy, that is something which is being included over here. वो चीज यहाँ पे include होती है. तो money supply increase और money supply decrease, money supply increase और money supply decrease, ये सारी की सारी चीजें आती हैं in terms of monetary policy. So monetary policy में all of these things are coming. When we talk about monetary policy review, I repeat, when we talk about monetary policy review, तो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में जो इकलौता ऑब्जेक्टिव रिजर्व बैंक का रहता है वो रहता है कि हम किस तरीके से मनी सप्लाई को इंक्रीज करें या किस तरीके से मनी सप्लाई को डिक्रीज करें. मनी सप्लाई का इंक्रीज या डिक्रीज देखा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर आरबीआई द्वारा, राइट. इट इज सीन थ्रू आरबीआई. सो दिस इज समथिंग दैट आरबीआई डज. नाउ कमिंग टू द लॉजिक ऑफ ऑब्जेक्टिव. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव टू रेगुलेट मनी सप्लाई? I repeat, what is the objective to regulate money supply? मतलब RBI जो है money supply को regulate कर तो रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है? Why is it regulating the money supply? क्या आप लोग बता सकते हैं? Can anyone tell me how is this or why is money supply being regulated? Why is money supply being regulated? Money supply is being regulated for two reasons. दो reasons है, right? There are two reasons. The first reason is facilitation of growth. I repeat, the first reason is facilitation of growth, to facilitate growth. And the second reason is to regulate inflation. I repeat, the second reason is to regulate inflation. There are two reasons why this thing is done. The first is facilitation of growth, कि growth को आप facilitate करें, facilitation of growth. And the second is regulation of inflation. आप inflation को regulate करें. दो चीजें हैं, growth और inflation, दो चीजें आती हैं. You have to facilitate growth and you have to regulate inflation. इन दो objectives को मद्देनजर रखते हुए RBI monetary policy review करता है. RBI does a monetary policy review keeping these two objectives in mind. So when we have these two objectives, इन objectives का basic correlation जो है वो money supply की availability से है. मनी सप्लाई इंक्रीज और मनी सप्लाई डिक्रीज. तो मनी सप्लाई का इंक्रीज और डिक्रीज देखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू. आई रिपीट, मनी सप्लाई का इंक्रीज और डिक्रीज देखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू. अगर मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा है, मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से, अगर मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा है, इफ मनी सप्लाई इज मोर इन द इकोनॉमी, इट मींस दैट पीपल हैव मोर अमाउंट ऑफ मनी इन देयर हैंड्स. लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा है. अगर लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा है तो ऑटोमेटिकली लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाती है. पीपल्स परचेसिंग पावर इंक्रीजेस, पीपल्स पावर टू डिमांड इंक्रीजेस. और जैसे जैसे लोगों की पावर टू डिमांड इंक्रीज करती जाती है, क्या होता है? व्हाट डज इट रिजल्ट इन? इट रिजल्ट्स इन ग्रोथ. उसकी वजह से ग्रोथ होती है. भाई अगर मैं कमा रहा हूं तो मैं 10 और चीजें डिमांड कर सकता हूं, ठीक है. आई कैन डिमांड 10 थिंग्स, आई कैन पे टू अदर पीपल, आई कैन डिमांड 10 थिंग्स. बट इफ आई एम नॉट अर्निंग, आई विल नॉट बी एबल टू डिमांड दोस थिंग्स. मैं डिमांड ही नहीं कर पाऊंगा. टुडे आई एम अर्निंग, सो आई डिमांड fruits also, I demand cake pastry also, I demand pizza also, I demand everything. I demand good travel also. But if I am not earning, I don't demand any of these things. मैं डिमांड ही नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है. तो इस वजह से ग्रोथ का फैसिलिटेशन जो है वो मनी सप्लाई पे डिपेंड करता है. आई रिपीट, ग्रोथ का फैसिलिटेशन जो है वो मनी सप्लाई पे डिपेंड करता है कि अगर मनी सप्लाई मार्केट में, इकोनॉमी में अच्छा है तो ऑटोमेटिकली इट विल लीड टू ग्रोथ. आई रिपीट, ऑटोमेटिकली इट विल लीड टू ग्रोथ. उसकी वजह से ग्रोथ होती है, इट लीड्स टू ग्रोथ. दैट इज वन. ये पहली चीज है. दूसरी तरफ इट लीड्स टू रेगुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन. आई रिपीट, इट लीड्स टू रेगुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन. रेगुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब है कि मार्केट में महंगाई किस पे डिपेंड करती है? महंगाई डिपेंड करती है कि मार्केट में मनी सप्लाई कितना है. दिस इज द फ्लिप साइड ऑफ ग्रोथ. आई रिपीट, दिस इज द फ्लिप साइड ऑफ ग्रोथ. ये नेगेटिव इंपैक्ट है. अगर आपकी इकोनॉमी में पैसा ज्यादा सर्कुलेट कर रहा है, ग्रोथ ज्यादा है, इसका मतलब लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं. अगर डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई लिमिटेड है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा इकोनॉमी में? अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई लिमिटेड है, सप्लाई याद रखिएगा हमेशा लिमिटेड रहती है. सप्लाई इज लिमिटेड, डिमांड इज मोर बिकॉज पीपल हैव मनी. व्हाट विल हैपन टू द प्राइसेस ऑफ द गुड्स? आज की डेट में दिल्ली में रियल एस्टेट का प्राइस, बॉम्बे में रियल एस्टेट का प्राइस
ग्लोबल एवरेज से कई गुना ज्यादा है, 20-20 गुना प्राइस हो गया 20 साल में। कैसे हो गया है? क्योंकि प्रॉपर्टी लैंड उतनी ही है, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है। डिमांड बहुत ज्यादा है तो प्राइसेस आर पुल्ड अप, प्राइसेस जो है पुल हो जाते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इसको क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। So when we call or when we understand market में money supply कितना है, it leads to inflation. उसको कहा जाता है regulation of inflation. I repeat, it is called as regulation of inflation. Word is regulate. Word is not control. Control word नहीं use करते कभी भी। Control word इसलिए use नहीं करते क्योंकि control का मतलब हमेशा होता है inflation को कम करो। देखिए, इन्फ्लेशन को किसी भी इकोनॉमी में हमारी हमारी नॉलेज में इन्फ्लेशन को एक नेगेटिव कॉनोटेशन दिया गया है। इट हैज बीन कंसिडर्ड टू बी अ नेगेटिव टर्म। इन्फ्लेशन इज नॉट अ नेगेटिव टर्म। इन्फ्लेशन इज नॉट एट ऑल अ नेगेटिव टर्म। इन फैक्ट इन्फ्लेशन इज अ पैरामीटर दैट माय इकोनॉमी इज ग्रोइंग। भाई, इन्फ्लेशन किस इकोनॉमी में हो सकता है? किस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगा, सोच के देखो। उसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगा ना जिस इकोनॉमी में लोग खर्च कर पा रहे हैं। लोग खर्च कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कि लोग कमा रहे हैं। लोग कमा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? लोगों के पास नौकरी है। लोगों के पास नौकरी है, इसका मतलब क्या है? इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ हो रही है, सर्विस ग्रोथ हो रही है। इसका मतलब आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जो बड़ा पॉजिटिव सिंबल है। सो इन्फ्लेशन, इफ इन चेक, is considered to be positive, which is why we are using the word regulation. We are not using the word control. All right. So इन्फ्लेशन का जो एस्पेक्ट है, आप ध्यान रखिए, वो रेंज करता है 2% से 6% के बीच। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इन्फ्लेशन रेंजेस बिटवीन 2% एंड 6%। प्लीज रिमेंबर दिस। इन्फ्लेशन रेंजेस बिटवीन 2% एंड 6%। मतलब 2% जो है वो लोअर रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, और 6% जो है वो अपर रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, विद आइडियल रेट ऑफ इन्फ्लेशन बीइंग 4%। जो आइडियल रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो 4% है। हमारी कंट्री को देखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि आइडियल रेट ऑफ इन्फ्लेशन अचीव हो सके। और आइडियल रेट ऑफ इन्फ्लेशन मेरी इकोनॉमी में 4% है, 4%। 4% प्लस माइनस 2%। आई रिपीट, 4% प्लस माइनस 2%। इसका जो बैंड है वो 2% प्लस जाएगा या 2% माइनस आएगा। यानी ये 4 का 6 हो सकता है, 4 का 2 हो सकता है। दैट इज इट। तो लोअर लिमिट जो है, लोअर सीलिंग 2% है, अपर सीलिंग 6% है। दिस इज व्हाट हैज बीन इंक्लूडेड ओवर हियर। This is considered to be inflation, regulation of inflation. तो ये दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। डुअल ऑब्जेक्टिव के साथ मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। इन दो ऑब्जेक्टिव के साथ बनाई जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू क्या किया गया? What happened when Urjit Patel was heading the committee? So Urjit Patel suggested that RBI's sole purpose should be to रेगुलेट इन्फ्लेशन। ये होना चाहिए आरबीआई का पर्पस। आरबीआई इस ऑब्जेक्टिव के साथ काम करे, ग्रोथ विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। आपको ग्रोथ की चिंता नहीं करनी चाहिए, ग्रोथ विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। 4% ऑफ जीडीपी, रीमा सिंह, 4% ऑफ जीडीपी। सो जितनी भी परसेंटेज टर्म से बात होती है, फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये इन्फ्लेशन, ये सब जीडीपी के टर्म्स में बात होती है। So regulation of inflation. This is called as regulation of inflation. So Urjit Patel had suggested that instead of going any other way, what you can do is you can fix this objective. आप इस objective को fix कर सकते हो कि आपका inflation जो है वो सही तरीके से regulate हो सके। So this is my objective. I repeat, this is my objective. हम इस objective के साथ काम करते हैं। So 2% से लेके 6% के बीच ये काम होगा। This is something which is working. तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी का टारगेट जो है वो है रेगुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स यूज करे जाते हैं। आई रिपीट, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स यूज करे जाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के दो कैटेगरीज के टूल्स हैं। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ टूल्स। वन इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव टूल्स। आई रिपीट, वन इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव ग्रुप ऑफ टूल्स एंड द सेकंड इज कॉल्ड एज क्वालिटेटिव ग्रुप ऑफ टूल्स। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, दो ग्रुप ऑफ टूल्स है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जो चीज डायरेक्टली क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई को अफेक्ट करे, समथिंग दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स द क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई। if anything is directly impacting the quantity of money supply, it is called as quantitative tool. उसको क्वांटिटेटिव टूल कहा जाता है जो डायरेक्टली मनी सप्लाई की क्वांटिटी को इम्पैक्ट करे, मनी सप्लाई को इम्पैक्ट करे, मनी सप्लाई का इंक्रीज या डिक्रीज। क्वांटिटेटिव टूल, इसको क्वांटिटेटिव टूल कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड, क्वालिटेटिव टूल्स आर दोस टूल्स जो कि डायरेक्टली मनी सप्लाई को इम्पैक्ट नहीं करते। दे डोंट डायरेक्टली इम्पैक्ट द मनी सप्लाई।
इसका इम्पैक्ट इवेंचुअली मनी सप्लाई पे होगा, लेकिन ये इंस्टेंट नहीं दिखता। मतलब ये ऐसा एक्शन नहीं है जिसकी वजह से मनी सप्लाई जो है वो एकदम से अफेक्ट हो जाता है, राइट? ये तो डायरेक्ट हिट है मनी सप्लाई पे, ये डायरेक्ट हिट है क्वांटिटेटिव टूल्स। तो ध्यान रखिए, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में फर्क ये है, क्वांटिटेटिव इज अ डायरेक्ट हिट ऑन मनी सप्लाई इंस्टेंटली, ये इंस्टेंट हिट है मनी सप्लाई की तरफ, क्वांटिटेटिव टूल्स। गाइस, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आप समझ पा रहे हैं सब लोग? So quantitative tools are included in this particular thing. Quantitative tools का मतलब क्या होता है? Quantitative tools that directly impact the quantity of money supply. जो quantity of money supply को direct impact करते हैं. Quantity of money supply को direct impact करा जाता है कुछ tools के तहत. Right? What are those tools? The first category of tools are called as reserve requirements. I repeat, the first category of tools are called as reserve requirements. इनको reserve requirements का नाम दिया जाता है. Reserve requirements का मतलब क्या है? What do reserve requirements mean? Reserve requirements का मतलब होता है CRR और SLR. I repeat, cash reserve ratio और statutory liquidity ratio. I repeat, cash reserve ratio or statutory liquidity ratio, CRR and SLR. I repeat, CRR and SLR. These are called as reserve requirements. I repeat, these are called as reserve requirements. इनको reserve requirements का नाम दिया जाता है, CRR and SLR. The second category is called what? It is called as liquidity adjustment facility. Liquidity adjustment facility under policy rates. These are called as policy rates. इसमें आता है in this repo rate and reverse repo rate. Repo rate and reverse repo rate are included in this particular category. Repo rate and reverse repo rate are included in this category. So this is liquidity adjustment facility and policy rates. ये चीजें यहाँ पे include होती है, repo rate, reverse repo rate. तीसरी कैटेगरी के अंदर आता है बैंक रेट. आई रिपीट, बैंक रेट. बैंक रेट इज ऑल्सो लाइक रेपो रेट, बट बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसलिए तीसरे कैटेगरी में लिखा हुआ है. इट हैज बीन रिटन इन थर्ड कैटेगरी. और चौथी चीज है ओपन मार्केट ऑपरेशंस. आई रिपीट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस. सो इसके थ्रू मैंने यहाँ पे लिखे हैं 6 टूल्स. आई हैव रिटन 4 टूल्स. The first tool that I have written is called as reserve requirements. I repeat, it is called as reserve requirements. Reserve requirements are of 2 types: CRR, cash reserve ratio, and statutory liquidity ratio. CRR and SLR, reserve requirements, cash reserve ratio, and statutory liquidity ratio. CAR is something different. CAR is not relevant over here. Then comes policy rates. Repo rate, reverse repo rate. I repeat, repo rate, reverse repo rate. तो ये हुए 4. पांचवा हुआ बैंक रेट और छठा हुआ ओपन मार्केट ऑपरेशंस. आई रिपीट, इट मींस ओपन मार्केट ऑपरेशंस. सबसे पहले हम समझेंगे रिजर्व रिक्वायरमेंट्स. आई रिपीट, द फर्स्ट थिंग दैट वील अंडरस्टैंड इज रिजर्व रिक्वायरमेंट्स. Are you ready, everyone? Reserve requirement समझने के लिए cash reserve ratio. I repeat, cash reserve ratio. Are you ready to understand what cash reserve ratio means? क्या आप लोग समझना चाहते हैं cash reserve ratio का मतलब क्या होता है? Cash reserve ratio. Cash reserve ratio is a reserve which has to be kept by every commercial bank with the RBI. I repeat, it has to be kept by every commercial bank with the RBI. तो CRR के बारे में 3-4 चीजें आप लोग याद रखेंगे. यू विल रिमेंबर 3-4 थिंग्स. इट इज अ परसेंटेज ऑफ NDTL. NDTL का मतलब होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज. आई रिपीट, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज. परसेंटेज ऑफ NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, टू बी केप्ट बाय एवरी बैंक. टू बी केप्ट बाय एवरी बैंक. हर कमर्शियल बैंक को क्या चीज करनी है?
अपनी जितनी उनकी लायबिलिटी है, जितने उनके रिजर्व्स हैं, जितना वो ओ करते हैं, उसका एक परसेंटेज, जो भी परसेंटेज आरबीआई बताता है, वो चीज उनको हर बैंक को सेट असाइड करनी है. एवरी सिंगल बैंक हैज टू सेट दैट परसेंटेज असाइड. तो अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं. एग्जांपल के तौर पे लेते हैं एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज. नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज जो है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज बैंक की 100 करोड़ की है, 100 करोड़, और इस पे 4% सीआरआर है. तो मतलब 4 करोड़ रुपए हर बैंक को अलग रखना है. 4 crores has to be kept separately by every single bank, every single commercial bank. So percentage of NDTL to be kept by every single commercial bank. This is point number 1. Point number 2 is it has to be kept in the premises of RBI. I repeat, it has to be kept in the premises of RBI. अपने premises में, अपने बैंक के खाते में नहीं रख सकते आप. आपको ये RBI के पास रखवाना पड़ेगा. यू हैव टू कीप इट विद आरबीआई. आपको आरबीआई के पास रखवाना पड़ेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्म में रखवाना पड़ेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखवाना पड़ेगा. ये दूसरी चीज है. थर्ड इज इट हैज टू बी केप्ट इन द फॉर्म ऑफ कैश. आई रिपीट, इट हैज टू बी केप्ट इन द फॉर्म ऑफ कैश. ये कैश के ही फॉर्म में रखवाया जा सकता है, आप और किसी ऑल्टरनेटिव फॉर्म में नहीं रखवा सकते. तो मतलब आपको रोज के हिसाब से कैश जो है वो आरबीआई के प्रेमिसेस में भिजवाना पड़ेगा अगर ये चीज चेंज होती है तो. So this is something which all of us have to remember. ये हमें याद रखना है. And fourth is you will not get any interest. इस चीज पे कोई कमाई नहीं होती. इस 4 करोड़ रुपए के ऊपर इस बैंक को कोई कमाई नहीं होगी, because ये पैसा हो गया है ब्लॉक. This money has already been blocked. This money has been blocked by Reserve Bank of India. I repeat, this money has been blocked by Reserve Bank of India. इस चीज को ध्यान रखिएगा. ये 4 चीजें आपको सीआरआर से रिलेटेड ध्यान रखनी है. 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. बाकी चीजें मैं आपको और अभी बताऊंगा. सबसे पहली चीज है कैश रिजर्व रेशो जो है वो एनडीटीएल का एक परसेंटेज है. वो परसेंटेज जो है वो आरबीआई द्वारा बताया जाता है. आपको उस परसेंटेज का एक पार्ट रखना है. आपको बैंक को उस परसेंटेज का एक पार्ट रिजर्व करना है, रिजर्व के तौर पे है. ये पहली चीज. दूसरी चीज है ये रखना पड़ेगा आरबीआई के प्रेमिसेस में. आप अपने बैंक में नहीं रख सकते, अपने अकाउंट में नहीं रख सकते, आपको आरबीआई के प्रेमिसेस में रखना पड़ेगा. दूसरी चीज. तीसरी चीज, वो आपको कैश के रूप में, यू हैव टू कीप इट इन द फॉर्म ऑफ कैश, शुल्क. सो आपको कैश के फॉर्म में रखना पड़ेगा. दिस इज समथिंग दैट यू टेक इनटू कंसिडरेशन. एंड द फोर्थ इज, चौथी चीज है, ये इंटरेस्ट फ्री है. दिस इज इंटरेस्ट फ्री. ये इंटरेस्ट फ्री है का मतलब क्या है कि आपको इस चीज पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. मतलब बैंक जो है इस पे कुछ नहीं कमा सकता, बैंक इस पे कुछ नहीं कमा सकता. सो ये सारी चीजें हैं जो कि यहां पर आती हैं. अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज. काफी स्टूडेंट्स ने पूछा है डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज क्या होती है. व्हाट आर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज? डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का मतलब 2 तरह की लायबिलिटी, डिमांड लायबिलिटी और टाइम लायबिलिटी. बैंक में कई तरह के अकाउंट होते हैं. करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट. 3 तरह के अकाउंट होते हैं. करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट. मैंने एक बैंक के साथ करंट अकाउंट भी खोला है, सेविंग्स अकाउंट भी खोला है और एफडी भी करवा रखी है. आई हैव डन ऑल 3 थिंग्स. मैंने तीनों चीजें करवा रखी हैं. तो क्या बैंक की लायबिलिटी है कि ये 3 चीजें वो मुझे वो करता है? इज दिस अ बैंक्स लायबिलिटी? यस और नो? क्या ये बैंक की लायबिलिटी है? अरे है या नहीं है, बताओ. बिल्कुल है. दिस इज बैंक्स लायबिलिटी. ये बैंक की लायबिलिटी है. तो करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में जो पैसा है वो बैंक की डिमांड लायबिलिटी है. दिस इज कॉल्ड एज डिमांड लायबिलिटी, क्योंकि ये दोनों है डिमांड डिपॉजिट्स. करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट जो है वो है डिमांड डिपॉजिट्स, और एफडी जो है वो है टाइम लायबिलिटी, क्योंकि ये जो है ये है टाइम डिपॉजिट. ये टाइम डिपॉजिट है, ये डिमांड डिपॉजिट है, ये टाइम डिपॉजिट है. डिमांड लायबिलिटी, टाइम लायबिलिटी. सो प्लीज रिमेंबर दिस, डिमांड लायबिलिटी, टाइम लायबिलिटी. ये डिमांड डिपॉजिट है, ये टाइम डिपॉजिट है. ये तीनों चीजों के डिपॉजिट्स यहाँ पे आते हैं. दिस इज समथिंग व्हिच इज इंक्लूडेड ओवर हियर. सो इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर केस में? इस केस में ये हो रहा है करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट. तो ये बैंक जितना ओ करता है, बैंक जितना ओ करता है, बैंक की जो लायबिलिटी है
वो सारी लाइबिलिटीज को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। ये बैंक की टोटल लाइबिलिटी है। करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, ये बैंक की टोटल लाइबिलिटी है। दिस इज द टोटल लाइबिलिटी ऑफ अ बैंक। दिस इज वन। और दूसरी तरफ क्या है, बैंक ने आगे लोन दिए होते हैं। भाई बैंक ने लोन आगे भी दिए होंगे ना, कमर्शियल लोन, कॉर्पोरेट लोन, आपके हाउस होल्ड लोन। आगे दिया होगा। तो जो बैंक ने लोन आगे दिया है वो दूसरे के ऊपर लायबिलिटी होगी। भाई सोच के देखो, अगर मैंने बैंक से लोन लिया है तो मेरे ऊपर लायबिलिटी है, और किसी ने बैंक में डिपॉजिट करवाया वो उसके ऊपर लायबिलिटी है। तो इस वजह से नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, नेट का मतलब ये है जितनी लायबिलिटी बैंक की लोगों के ऊपर है और जितनी लायबिलिटी लोगों की बैंक के ऊपर है, उसका नेट फिगर क्या है, उसका नेट फिगर ले लीजिए तो ऑटोमेटिकली आपके पास नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी आ जाता है। इसका परसेंटेज कैलकुलेट करा जाता है 4%। दिस इज द परसेंटेज दैट इज कैलकुलेटेड। सो CRR is a percentage of NDTL to be kept by bank in the premises of RBI in the form of cash, and there will be no interest. पीयूष बांटा, मैं क्या समझा रहा हूं, तुम क्या पूछ रहे हो? Ask related doubts. Don't ask unrelated doubts. CRR, cash reserve ratio. So when we talk about cash reserve ratio, this is something which is to be maintained. ये चीज मेंटेन करनी है। So कैश रिजर्व रेशो इज टू बी मेंटेन्ड एवरी फोर्टनाइट। हर 15 दिन में मेंटेन करना पड़ता है। मतलब हर 15 दिन में आपको देखना पड़ेगा कि एनडीटीएल क्या है, उसके हिसाब से आपको 4% मेंटेन करना पड़ेगा। अब मैं आपसे सवाल पूछने जा रहा हूं, मुझे समझने की कोशिश करिएगा। नाउ लिसन टू बी वेरी केयरफुली। एक बैंक के पास एनडीटीएल है 100 करोड़ का, 100 करोड़ का एनडीटीएल है, 100 करोड़ का एनडीटीएल है एक बैंक के पास, और भारत सरकार ने 4% CRR बोला हुआ है। भारत सरकार ने 4% CRR बोला हुआ है। ₹4 करोड़ इज द CRR। तो 4 करोड़ रुपया जो है वो आरबीआई के पास रखवाना है। इट हैज टू बी केप्ट विद आरबीआई। 4 करोड़ हैज टू बी केप्ट विद आरबीआई। बिल्कुल ठीक बात है। बैंक के पास बचे 96 करोड़, 96 करोड़ रुपए बचे हैं बैंक के पास। ये 96 करोड़ रुपए जो है ये आरबीआई फ्री है लेंड करने के लिए। आरबीआई कैन लेंड दिस मनी इन द मार्केट। It can do anything with this funds. ये इस फंड के साथ कुछ भी कर सकते हैं। 96 करोड़ बाहर लेंड कर देंगे। This can be lent outside. 96 करोड़ can be lent outside. ठीक है, तो ये बैंक जो है ये बाहर लेंड कर देगा। अब अगर आरबीआई को लगता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा है और मार्केट में मनी सप्लाई कम होना चाहिए, इफ आरबीआई फील्स दैट मार्केट में मनी सप्लाई कम होना चाहिए, तो आरबीआई के हाथ में एक टूल है CRR। CRR is a tool in the hands of RBI. RBI CRR के साथ क्या कर सकता है? What can RBI do with CRR? बताइए। RBI will increase CRR to 5%. RBI ने CRR को इंक्रीज कर दिया 5%। 5% हो गया, 1% से CRR इंक्रीज कर दिया। It is ₹5 करोड़। 5 करोड़ हो गया, 4 करोड़ से 5 करोड़ हो गया, 1 करोड़ से CRR आपका इंक्रीज हो गया। अब इसी बैंक के पास कितना रह जाएगा बैलेंस? 95 करोड़। इस बैंक के पास कितना बैलेंस रह जाएगा? 95 करोड़, 95 करोड़। अब वो 95 करोड़ बाहर लेंड कर सकता है। इट कैन ओनली लेंड 95 करोड़। इसका मतलब आपकी लेंडिंग पे 1 करोड़ का फर्क पड़ गया। इसका मतलब इकोनॉमी में 1 करोड़ रुपया कम हो गया। अगर इकोनॉमी में 1 करोड़ रुपया कम हो गया तो ऑटोमेटिकली आपका मनी सप्लाई इंपैक्ट हुआ या नहीं हुआ? Has the money supply been impacted or not? Please tell me. Yes, money supply has been impacted and eventually it would also impact the rate of inflation. The rate of inflation भी impact करेगा. It would also imply the rate of inflation. So rate of inflation would also be impacted. This is something which is there. So this is something which is there which you have to remember. ये आपको ध्यान रखना है. This is something that you have to remember. Inflation would, so see, this is less and inflation would also be less. So please remember that this is CRR. तो इसका मतलब ये है CRR and inflation are inversely proportional. अगर CRR बढ़ता है तो मनी सप्लाई कम होगा और इन्फ्लेशन कम हो जाएगी।
अगर सीआरआर कम होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इन्फ्लेशन मनी सप्लाई बढ़ेगा और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा. So this is something which is included over here in terms of CRR, cash reserve ratio. I repeat, CRR. Next reserve requirement is statutory liquidity ratio. I repeat, the next reserve requirement is statutory liquidity ratio. Statutory liquidity ratio में भी आप ऐसी 4-5 चीजें याद रखेंगे. You will remember 4-5 things as a part of statutory liquidity ratio. Statutory liquidity ratio has to be maintained as a percentage of NDTL. NDTL के ही percentage में maintain होगा, बिल्कुल सही बात है. Percentage of NDTL. It has to be maintained in own premises. बैंक अपने premises में maintain करें. जैसे CRR तो RBI के premises में maintain करना था, ये बैंक अपने premises में maintain करेगा. It can be in the form of cash plus gold plus government securities. Cash, gold, and G-Secs. It can be in either of these three forms or combined of these three forms should be equivalent to SLR. ये SLR के बराबर होना चाहिए. तो आप ध्यान रखिए, यहाँ पे बैंक को ये लेवरेज मिलता है कि आपको सब कुछ कैश के रूप में स्टोर नहीं करना है. कैश हो सकता है, गोल्ड और G-Secs, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन तीनों के फॉर्म में SLR को स्टोर किया जा सकता है. SLR कैन बी स्टोर्ड इन ऑल थ्री फॉर्म्स एज अ पार्ट ऑफ दिस. तो इसको SLR कहा जाता है. एंड इस पे भी बैंक्स कुछ कमाते नहीं है. अगर यहाँ पे भी पूरा कैश रखा हुआ तो उस पे भी बैंक कुछ नहीं कमाएगा. बैंक विल नॉट अर्न एनीथिंग. SLR is maintained on a daily basis. ये डेली बेसिस पे मेंटेन करना होता है. CRR is maintained on a fortnightly basis. ये ध्यान रखिएगा. Statutory liquidity ratio. I repeat, statutory liquidity ratio. So when we talk about statutory liquidity ratio, SLR is at a much higher rate as compared to CRR. CRR से इसका रेट कई ज्यादा होता है. 18 से 24% के बीच SLR घूमता है. जैसे CRR is between 4 to 6%, 4 से 6% के बीच होगा. SLR 18, 18.5, 19, 19.5, 20, 21 ऐसे रहेगा. SLR is very high. In fact, SLR pre-1991 used to be at 38%, 38% पे होता था तब SLR. नरसिम्हम के रिकमेंडेशन पे SLR कम किया गया. उसको कम करवाया गया कि भैया क्या कर रहे हो, बैंक के पास पैसा नहीं बचेगा. 18 से 24% है. So this is something that was stated as a part of statutory liquidity ratio. तो अब SLR के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें कि बैंक के पास, सेम एग्जांपल लेते हैं, 100 करोड़ का NDTL है, 100 करोड़ का NDTL है. SLR जो है वो 18% है. SLR is 18%, यानी कि 18 करोड़ रुपया जो है वो बैंक को स्टोर करना है अपने प्रेमिसेस में. बैंक के पास बचा 82 करोड़. 82 करोड़ has been left with the bank. 18% has been stored with the bank. 18% जो SLR है वो बैंक्स के पास स्टोर किया जा चुका है. This has been stored with the banks. 18% SLR है और 82 करोड़ मार्केट में है जो कि बैंक्स आगे लेंड कर सकते हैं. तो बैंक्स कैन लेंड फर्दर. अब मुझे एक बात बताइए, अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है तो RBI SLR के साथ क्या एक्शन लेंगे? What will RBI do with respect to SLR? Can you tell me? They will increase SLR. They will increase SLR beyond 18%. SLR को बढ़ा के 19% कर देंगे. 19% SLR कर दिया. 19% जहां पे SLR हुआ तो instead of 18 crores now you will deposit 19 crores in your coffers and you will be left with 81 CR. 81 करोड़ रुपया आपके पास बचेगा जिसको आप बाहर लेंड कर सकते हो. This you can lend outside. तो इसका मतलब मार्केट में मनी सप्लाई 1 करोड़ से कम हो गया. मार्केट में मनी सप्लाई 1 करोड़ से कम होते ही क्या होगा? What will happen? Inflation levels would be less because money supply is less. Inflation levels automatically कम हो जाएंगे. क्यों कम हो जाएंगे? क्योंकि मनी सप्लाई जो है वो ऑटोमेटिकली कम है. मनी सप्लाई इज ऑटोमेटिकली लेस. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ये आप लोगों को समझ में आया? तो CRR SLR कंपल्सरी रिक्वायरमेंट्स है बैंक पे. आई रिपीट, CRR SLR कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है बैंक पे. अब हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से एक बैंक के पास 100 करोड़ का NDTL है. 100 करोड़ का NDTL है. इस बैंक के पास 4% जो है CRR मेंटेन करना है. 4% CRR हमारे एग्जांपल के हिसाब से, तो 4 करोड़ तो CRR के नाम के हो गए. माइनस इस बैंक को 18% SLR मेंटेन करना है. SLR 18% मेंटेन करना, तो 18 करोड़ SLR के नाम के हो गए. बचा कितना? हाउ मच इज लेफ्ट? प्लीज टेल मी हाउ मच इज लेफ्ट? 78 crores. 78 crores is left. 78 crores is left with the bank, and this money can be lent to institutions, to corporates, to individuals, to whoever.
78 करोड़ आप लेंड करने के लिए रह गया है, क्योंकि सीआरआर एसएलआर कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है। तो अगर रिजर्व बैंक चाहता है कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़े, ध्यान से सुनो, अगर रिजर्व बैंक चाहता है कि मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो, बढ़े, तो रिजर्व बैंक क्या करेगा सीआरआर एसएलआर के साथ? व्हाट विल द रिजर्व बैंक डू विद सीआरआर और एसएलआर? प्लीज टेल मी। इट विल डिक्रीज सीआरआर एज वेल एज एसएलआर। वो डिक्रीज करेगा सीआरआर को, एसएलआर को, इट विल डिक्रीज। क्योंकि अगर ये डिक्रीज करोगे तो आपके पास ये कम पैसा स्टोर करोगे, कम पैसा स्टोर करोगे तो यहाँ पे मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई वुड इंक्रीज ओवर देयर। So CRR or SLR are tools which are used by Reserve Bank and they are called as reserve requirements. Ritendra Singh, they are called as reserve requirements. उनको reserve requirements का नाम दिया जाता है। अब पढ़िए, आपको ये चीज क्रिस्टल क्लियर होगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, गारंटी मेरी है, सुनना आपको है। हाँ जी, देखिए, कैश रिजर्व रेशो, CRR, कैश रिजर्व रेशो, it implies that every commercial bank has to keep with the Reserve Bank of India a certain percentage of its total deposits, inclusive of both demand and time liabilities. Currently, the CRR is at 4%. This means that if ICICI Bank has a total NDTL of 100 crores, then it has to keep 4 crores with the central bank as reserve. RBI के premises में 4 करोड़ रुपया CRR के तौर पे ICICI को स्टोर करना पड़ेगा। अगर सीआरआर बढ़ा दिया जाता है, इफ सीआरआर इज इंक्रीज्ड, इट मींस दैट बैंक्स विल हैव लेसर अमाउंट ऑफ मनी टू लेंड, बैंक्स के पास कम पैसा रह जाएगा लेंड करने के लिए, thereby reducing their prospective profit, vice versa when CRR is reduced। तो ये सीआरआर को, ये चीज सीआरआर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्लूड करी जाती है, सीआरआर। दूसरा है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, SLR, whereas CRR warrants commercial banks to keep reserves with the central bank. The SLR requires commercial banks to keep a certain proportion of their deposits with themselves, अपने premises में। Currently, SLR is at 19.5%. This means that if ICICI has a total of 100 crores as DTL, demand and time liabilities, 19.5 crore SLR के नाम का अपने premises पर रखना पड़ेगा with itself as reserves। तो आइडिया ऑफ कीपिंग रिजर्व, जितने लोग पूछ रहे थे ना क्यों करते हैं, आइडिया ऑफ कीपिंग रिजर्व बोथ सीआरआर एसएलआर इज टू बूस्ट पब्लिक कॉन्फिडेंस इन बैंकिंग सेक्टर एंड कॉन्सिक्वेंटली अवॉइड बैंक रन्स। बैंक रन्स नीड टू बी अवॉइडेड, बैंक रन्स नीड टू बी अवॉइडेड। बैंक रन्स मींस कि कल को बैंक के पास पैसा कम बचे, या अगर हम सब बैंक के पास जाएं पैसा विड्रॉ करने के लिए, तो बैंक के पास पैसा, ऐसा नहीं होना चाहिए बैंक के पास पैसा ही नहीं है। मतलब मान लीजिए अगर 20,000 डिपॉजिटर्स पहुंच गए आज की डेट में एचडीएफसी में, बोलेंगे हमारा पैसा वापस करो, तो HDFC should have that kind of money. So that money can be met through CRR and SLR. भगवान ना करे ऐसी सिचुएशन आए, लेकिन उसके पास पैसा है तो पब्लिक कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने के लिए रहता है। If SLR is raised, I repeat, अगर SLR बढ़ा दिया जाता है, it means that banks will have lesser amount of money to lend, thereby reducing their prospective profit. Prospective profit कम हो जाता है, vice versa when SLR is reduced. RBI generally increases the reserve deposit ratio, collective term for CRR SLR. देखिए, सीआरआर एसएलआर दोनों क्या है? रिजर्व्स है। तो दोनों को मिला के जो रेशो है उसको कहा जाता है आरडीआर, रिजर्व डिपॉजिट रेशो। व्हेन इट वांट्स टू अब्सॉर्ब मनी इन सर्कुलेशन, जब जो पैसा सर्कुलेशन में है उसको अब्सॉर्ब करना है तो यहाँ आता है। Thus this is usually done during periods of inflation. On the other hand, when inflation rates are low and RBI wants to give a push to growth rates, it reduced RDR. So RDR is a collective term. I repeat, RDR is a collective term of CRR plus SLR. तो अगर आप बोलो आपने आरडीआर बढ़ाया है, तो आप देखिए उसमें क्या बढ़ाया है, क्या दोनों रिजर्व्स बढ़ाए हैं या सिर्फ एक, वन ऑफ द टू रिजर्व्स बढ़ाया है। दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी चेक्ड। आरडीआर, रिजर्व डिपॉजिट रेशो, इंक्रीज तो मनी सप्लाई वुड डिक्रीज, रिजर्व डिपॉजिट रेशो वुड डिक्रीज, इवेंचुअली मनी सप्लाई वुड इंक्रीज एंड इन्फ्लेशन वुड आल्सो इंक्रीज। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, CRR, SLR, umbrella term, reserve deposit ratio or reserve ratios. This is something, these two tools are in the hands of RBI to be able to regulate the money supply in the economy and eventually regulate inflation in the economy. Are these two concepts crystal clear to all of you? Please tell me by giving a thumbs up. क्या ये concepts आप लोगों को crystal clear है? Please respond to me by giving a thumbs up. Take the count up to 5,000 likes and I want each and every student to subscribe to my Telegram handle.
मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोग मेरे टेलीग्राम हैंडल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो जितनी पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सारी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल पे मिलेंगी. यू विल फाइंड ऑल दीज पीडीएफ ऑन माई टेलीग्राम हैंडल. प्लीज मेक श्योर उसका लिंक जो यहाँ पे पिन करा हुआ है, जो लिंक आप देख पा रहे हो, वो मेरे टेलीग्राम हैंडल का है. Please subscribe to the Telegram handle, and every single student, I want every single student to press the thumb. This can happen at any point in time. Please Telegram handle को subscribe करिए. I will be removing the link very soon. I'm giving you 5 minutes. I'll be removing the link after 5 minutes. ये Telegram handle है, इसको subscribe करिए. And like ratio कम नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में. This should keep on increasing. I want every single student to press the thumbs up at least once. Yes. So these are two things. तो ये दो चीजें हुई. These are two types of tools. ये दो तरह के tools हुए. इसके बाद the third and the fourth type of tool. The third type of tool हम पहले पढ़ेंगे. Third tool is called as bank rate. Bank rate, repo rate और marginal standing facility. ये तीनों चीजें एक सुर में पढ़ाऊंगा मैं आपको. So we will study this in one sur, in one go. You समझ में आएगा, दिमाग में फिट होगा. आप लोग समझिए इस चीज को क्या है. सब लोग टेलीग्राम हैंडल को सब्सक्राइब करें. आई वांट एवरी सिंगल स्टूडेंट टू सब्सक्राइब टू द टेलीग्राम हैंडल. यू विल फाइंड ऑल ऑफ दीज पीडीएफ्स ऑन माय टेलीग्राम हैंडल अलोंग विद माय SMDs, my MCQ digest, which I upload on a daily basis by 9:30 in the morning. Every single student should give a thumbs up. कंजूसी ना करें प्लीज. thumbs up दे सारे students. All the students should press the thumb. Bank rate, repo rate, marginal standing facility. क्या खास बात है इसमें? देखिए, इन सबको इंटरेस्ट रेट का नाम दिया जाता है. इंटरेस्ट रेट्स, these are called as interest rates. I repeat, these are called as interest rates. जब मैं इंटरेस्ट रेट बोलता हूं, तो इंटरेस्ट रेट का मतलब ये होता है कि अगर मैंने किसी को उधार दिया है, if I have given a loan to someone, I receive an installment in exchange of that loan on a periodic basis. पीरियोडिक बेसिस पे मुझे उस लोन के नाम पे इंस्टॉलमेंट मिलता है वापस. इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. आई रिपीट, इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के हिसाब से मुझे इंस्टॉलमेंट मिलता जाता है, मिलता जाता है, मिलता जाता है, मिलता जाता है. आई कीप गेटिंग इट. तो उसमें जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है उसे इंटरेस्ट रेट कहा जाता है. दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट, सूद, मुत्तल, कुछ भी बोलो. सो बैंक रेट, रेपो रेट और MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये तीन चीजें हैं. ये तीन रेट्स जो है ये इंटरेस्ट रेट्स हैं. आई रिपीट, दीज थ्री रेट्स आर इंटरेस्ट रेट्स. जब हम इंटरेस्ट रेट्स की बात करें, ये तीनों रेट इंटरेस्ट रेट हैं और हम इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं. इसका मतलब व्हेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया is lending to commercial bank. I repeat, when Reserve Bank of India is lending to commercial bank. Activity देखिए कहां से कहां हो रही है. RBI is giving money to commercial bank. RBI charges rate of interest in exchange of commercial bank. RBI जो है वो rate of interest चार्ज करता है in exchange of commercial bank. इस rate of interest को बैंक रेट कहा जाता है, रेपो रेट कहा जाता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहा जाता है. दिस इज कॉल्ड एज बैंक रेट, रेपो रेट एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. सो ये जो तीनों रेट ऑफ इंटरेस्ट है, these all three rates of interest by different nomenclatures are on a similar mechanism or a similar kind of transaction. The transaction is कौन किसको लोन दे रहा है. RBI कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट RBI चार्ज करेगा कमर्शियल बैंक से, उसको बैंक रेट भी बोल सकते हैं, उसको रेपो रेट भी बोल सकते हैं, उसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी बोल सकते हैं. इट कैन बी कॉल्ड एज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आल्सो. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज इंक्लूडेड ओवर हियर. अब आपके दिमाग में दूसरा सवाल ये आएगा कि बैंक रेट, रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, तीन रेट क्यों? जब सेम टाइप का मैकेनिज्म है, जब RBI पैसा दे रहा है कमर्शियल बैंक को, तो व्हाई डू वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ रेट्स? व्हाई नॉट वन? क्यों हम इतना कंफ्यूजन? व्हाई शुड बी add to our woes of preparation, or as it is we have to study like 100 things. So the point is bank rate, repo rate and marginal standing facility. जब हम लोग बैंक रेट, रेपो रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की बात करें, इसमें टेन्योर डिफर्स. इस चीज में टेन्योर फर्क होता है. मतलब अगर लोन जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए दिया गया है, दिस लोन if it has been given for long term, 5 years, 6 years, 7 years, 8 years, then the rate of interest charge would be bank rate. तब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा उसे कहा जाता है बैंक रेट.
तो ये बैंक रेट है. On the other hand, the second is repo rate. Repo rate is for a short term period. It is for a short term period. Short term का मतलब है up to 1 year. एक साल का पीरियड हो सकता है, ठीक है, up to 1 year, 9 months, 6 months. तो एक साल का पीरियड हो, 9 महीने का पीरियड हो, 6 महीने का पीरियड हो, तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चार्ज करा जाता है उसे कहा जाता है रेपो रेट. इट इज कॉल्ड एज रेपो रेट. और तीसरा है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF. मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, दिस इज फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, अ वेरी शॉर्ट टर्म और अ वेरी शॉर्ट पीरियड. वेरी शॉर्ट का मतलब है ओवरनाइट, कि अभी इस वक्त SBI RBI को बोले कि हम, मुझे इस वक्त आई नीड 10,000 करोड़ बाय 5 o'clock, हमें 10,000 करोड़ 5 बजे तक चाहिए और हम आपको कल वापस भी कर देंगे. So this will be available, loan will be available, but it will be available at a very high rate of interest. और उस हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF कहा जाता है. इट इज कॉल्ड एज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और MSF. सो तीन रेट ऑफ इंटरेस्ट हुए, बैंक रेट, रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. तीनों रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल सेम मैकेनिज्म पे चलते हैं कि RBI ने कमर्शियल बैंक्स को लोन दिया. लेकिन अगर RBI ने कमर्शियल बैंक्स को लोन दिया है, वो अलग अलग टेन्योर के बेसिस पे दिया है. इस वजह से तीन रेट्स होते हैं. वन इज बैंक रेट, द सेकंड इज रेपो रेट एंड द थर्ड इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और MSF. मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, तीन अलग अलग रेट्स हैं. Bank rate is for long-term loans, repo rate is for short-term loans, and marginal standing facility is for very short-term loans. So this is all we include in our understanding as a part of repo and reverse repo. तो अब इसमें आप समझे कि बैंक रेट किस तरीके से ऑपरेट करेगा. हाउ वुड बैंक रेट ऑपरेट? बैंक रेट जो है, मान लीजिए वो 5% है, 5%. जो भी लोन का अमाउंट है उस पर 5% मिलेगा. वी हैव गॉट 5%, ठीक है, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आप RBI को पे करोगे. अगर RBI तो देखिए, RBI से SBI ने पैसा लिया, SBI हैज बोरोड मनी फ्रॉम RBI और SBI जो है 5% RBI को दे रहा है. इट इज गिविंग 5% टू RBI. SBI ने 100 करोड़ बोरो करे, 100 करोड़ बोरो करे. अब SBI आगे 100 करोड़ जो है वो लेंड करेगा. जाहिर सी बात है वो 5+% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगा. भाई अपना नुकसान पे 5% का, अगर मैं 100 रुपए की चीज खरीद रहा हूं तो मैं 100 से ज्यादा की बेचूंगा ना, मुझसे कम की तो बेचूंगा नहीं. सो 5% जो है SBI ने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, तो वो 5% प्लस पे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आगे लेंड करेगा. तो लेट्स से इट लेंड्स एट 6%, वो 6% पे लेंड करता है आगे. 1% उसका मार्जिन है, SBI का मार्जिन 1% है. If RBI wants to control money supply in the economy, I repeat, if RBI wants to control money supply in the economy, what should RBI do with the bank rate? Please tell me. What should RBI do with the bank rate? Eventually, RBI should increase the bank rate to 5.5%. 5.5% पे बैंक रेट कर दिया RBI ने. RBI increased the bank rate to 5.5%. इस इंटरेस्ट रेट को 5.5 कर दिया. अब SBI मान लीजिए 100 करोड़ रुपया लेता है 5.5% पे, SBI ने बोरो करा 5.5% पे. तो SBI या तो, अगर SBI चाहता है कि उसका लोन उतना कंपेटिटिव हो मार्केट में, तो उसे 6% पे देना पड़ेगा. अगर वो 6% पे देता है तो SBI का अपना मार्जिन कम हो रहा है, इसका अपना मार्जिन कम हो रहा है, इसका अपना कॉस्ट जो है वो मीट हो रही होगी, कॉस्ट मीट करनी है, मार्जिन कम हो रहा है. और अगर वो ये बढ़ाता है, मतलब इसको भी वो 0.5 से बढ़ा देता है, 6.5% कर देता है, तो इससे लोग लोन लेना कम कर देंगे. लोन लेना कम हो जाएगा SBI से, क्योंकि लोन हो गया है महंगा, राइट? लोन हैज, द प्राइसेस ऑफ द लोन्स हैव इंक्रीज्ड. नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू सर्विस द लोन टू द ट्यून ऑफ मोर बाय 0.5%. तो ये चीज यहाँ हो जाती है. तो RBI ने SBI को पैसा दिया, SBI ने 6 के 6.5% अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट करा. या तो SBI अपना खुद का मार्जिन छोड़े, या SBI जिस पैसों पे दे रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ाए. दोनों ही केसेस में क्या है कि मार्केट में मनी सप्लाई जो है वो जाना हो जाएगा कम. ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन वुड रिड्यूस, इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगा. ये बात कर रहे हैं हम लोग बैंक रेट की. वी आर टॉकिंग अबाउट बैंक रेट. दूसरी चीज है रेपो रेट. The second thing is repo rate. So in these terms, when we are talking about repo rate, जब हम repo rate पे बात करें, repo rate is also the same rate at which RBI lends to commercial banks. RBI जो है commercial bank को पैसा दे रहा है.
If I say that RBI is lending to commercial banks, I repeat, if I say that RBI is lending to commercial banks, what does it mean? उसका क्या मतलब होता है? RBI commercial banks को पैसा दे रहा है, इसका क्या मतलब है? What does it mean? RBI is giving loans to commercial bank. When we say that RBI is giving loans to commercial banks, what all does it include? उसमें क्या होता है? रेपो रेट में RBI जो है कमर्शियल बैंक्स को लोन दिया, ठीक है, लोन का अमाउंट दिया। कमर्शियल बैंक्स क्या करता है? आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गिरवी रखवाता है, कोलैटरल। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गिरवी रखवाता है, कोलैटरल, क्योंकि कमर्शियल बैंक ने लोन लिया है रिजर्व बैंक से, ठीक है, लोन लिया है तो वो गिरवी रखवाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, मॉर्गेज, कोलैटरल, कुछ भी बोलो। एंड कमर्शियल बैंक पेज ऑब्वियसली रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कहा जाता है रेपो रेट, इसी को रेपो रेट कहा जाता है। रेपो रेट का फुल फॉर्म है रीपर्चेज ऑप्शन। रीपर्चेज ऑप्शन, रेपो, रीपर्चेज ऑप्शन। रीपर्चेज ऑप्शन, रीपर्चेज का मतलब ये होता है कि जब आप कभी कोई चीज गिरवी रखवाते हो, मान लो आपने कुछ गिरवी रखवाया, आपने अपनी अंगूठी गिरवी रखवाई और 10,000 रुपए लिए, यू हैव टेकन 10,000 रुपीज। नाउ इफ यू टेक 10,000 प्लस इंटरेस्ट, लेट्स से 11,000, आप 11,000 रुपए लेकर वापस जाते हो, तो एक तरीके से आप अपनी अंगूठी वापस खरीद रहे हो। अपनी ही अंगूठी जो आपने गिरवी रखवाई थी वो आप वापस खरीद रहे हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यू आर रीपर्चेजिंग योर ओन सिक्योरिटी बैक। सो कमर्शियल बैंक इज रीपर्चेजिंग द सिक्योरिटीज। जो चीज गिरवी रखवाई थी वो हम उससे आरबीआई से वापस खरीद रहे हैं। वी आर परचेजिंग इट फ्रॉम आरबीआई। So in this term, in this basic logic, commercial bank is giving money, or commercial bank is giving securities as a collateral to RBI, where commercial bank would purchase these securities back from RBI at whatever rate it would pay the principal plus interest. तो इस वजह से इसका नाम है रीपर्चेज ऑप्शन। इसको रीपर्चेज ऑप्शन कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एज रीपर्चेज ऑप्शन। तो रीपर्चेज ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज मैंने आपको समझाई है, द थिंग दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड, मान लीजिए रेपो रेट जो है वो 5.5% पे फिक्स्ड है। इट इज फिक्स्ड एट 5.5%। अगर आरबीआई चाहता है मार्केट में मनी सप्लाई बढ़े, मार्केट में मनी सप्लाई अभी कम है, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़े, तो आरबीआई को क्या करना चाहिए रेपो रेट के साथ? व्हाट शुड आरबीआई डू विद द रेपो रेट? न्यू रेपो रेट क्या होना चाहिए? अगर वो चाहता है मार्केट में मनी सप्लाई बढ़े तो रेपो रेट को कम कर दो, 5% पे ले आओ। अगर रेपो रेट 5% पे आ जाएगा तो कमर्शियल बैंक को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेके आगे जो लोन है वो सस्ता दे सकता है। इट कैन गिव लोन एट अ लेसर कॉस्ट। If it gives loan at a lesser cost, automatically more people will borrow, and when more people borrow, what will happen? It will lead to increase in money supply. उसकी वजह से मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। Are you getting the point? उसकी वजह से ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। It would lead to increase in money supply any day. This is something that we need to understand as a part of repo rate. तो रेपो रेट को हमें इसी चीज के बेसिस पे समझना है कि रेपो रेट ये होता है। सो आप पढ़े बैंक रेट की डेफिनेशन, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। इट विल बी एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। It is the rate of interest at which RBI lends money to commercial banks and other financial institutions for meeting shortfall. Shortfall को मीट करने के लिए RBI जो है कमर्शियल बैंक्स को पैसा देता है। This is a long term rate. Long term का मतलब होता है क्योंकि long term के लिए पैसा दिया जाता है। Long term rate. When this rate is raised, जब ये रेट बढ़ा दिया जाता है, increased, RBI indirectly discourages banks to lend money to its customers, thereby indirectly reducing the currency in circulation. तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? बैंक रेट बढ़ेगा तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगा, करेंसी इन सर्कुलेशन कम हो जाएगी। इट इज नोन एज अ डियर मनी पॉलिसी, डियर मॉनेटरी पॉलिसी, डियर मनी पॉलिसी। डियर का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। डियर का मतलब होता है महंगी, एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी, महंगी मॉनेटरी पॉलिसी। हमने लोन महंगा कर दिया तो डियर मनी पॉलिसी, एंड इट इज इंप्लीमेंटेड यूजुअली ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के दौरान वो इंप्लीमेंट हो सकती है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एज अ पार्ट ऑफ बैंक रेट। On the contrary, the cheap money policy, cheap यानी कि सस्ती money policy, is used when RBI wants to encourage a greater share of currency in circulation. RBI चाहता है कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़े। कैसे बढ़ेगा? आप रेट कम कर दीजिए और लोग बोरो करेंगे, और लोग बोरो करेंगे तो ऑटोमेटिकली मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। इट विल लीड टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई। सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी बैंक रेट। ये बैंक रेट है, इसको बैंक रेट के कॉन्सेप्ट में इंक्लूड करा जाता है।
followed by that repo rate, repo operations, repo rate. What are repo operations? मैंने आपको repo का full form क्या बताया था? What was the full form of repo? बता सकते हो? No, Adesh Gaikwad. तो लोन एक्सटेंड कर दिया जाएगा अनीश कुमार. Repurchase option. Repurchase option. पढ़िए जी. When RBI buys government securities from banks with a repurchase agreement, the promise to buy back later at predetermined date and price. Predetermined days and predetermined price on a short-term basis, generally overnight or for few specified days. So it is known as repo operations. Through the repo operations, the commercial bank essentially borrows money from central bank. Commercial bank central bank से borrow कर रहा है. Repo rate is essentially the rate at which this money is borrowed. जिस रेट पे आपने पैसा उठाया है, आपने उधार उठाया है और आपने उधार जो है शॉर्ट टर्म के लिए उठाया है, उसको रेपो रेट कहा जाता है. When repo rates are increased, banks would obviously not prefer to take loans. Banks जो है वो loans नहीं लेंगे from RBI. This would reduce the money supply in the economy. Vice versa when repo rates are decreased. जब repo rates decrease होगा तो vice versa उल्टा हो जाएगा. This is something that we take into account. ये repo rate का part है. ये repo rate का part होता है. So this is repo rate. अब रिवर्स रेपो रेट इज ऑब्वियसली रिवर्स ऑफ रेपो रेट. इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का मतलब ये है, भाई साफ बात है, रेपो में कौन किसको लोन दे रहा है बताइए. रेपो में कौन किसको लोन दे रहा है? हु इज लेंडिंग टू हु? कमर्शियल बैंक, आरबीआई. रेपो में कौन किसको लोन दे रहा है बताओ? आरबीआई कमर्शियल बैंक को दे रहा है या कमर्शियल बैंक आरबीआई को दे रहा है? RBI commercial bank को लोन दे रहा है. So when RBI is lending to commercial bank, yes, and charging rate of interest, this rate of interest is called as repo rate. इसको repo rate कहा जाता है. This is called as repo rate. On the other hand, when commercial bank lends to RBI, commercial bank जो है वो पैसा उधार दे रहा है RBI को. Commercial bank is lending money to RBI at a rate of interest. This rate of interest is called as reverse repo rate. When the operation is in reverse, when commercial banks lend to RBI at a rate of interest, this rate of interest is called as reverse repo rate. I repeat, this rate of interest is called as reverse repo rate. इसमें सबसे पहला सवाल ये उठता है कि भैया ये बताओ कि कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसा देगा क्यों? उससे बड़ी बात, आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा लेगा क्यों? क्योंकि अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा लेगा तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. बताइए. चलो कमर्शियल बैंक ने आरबीआई को दिया इंटरेस्ट के लिए. आरबीआई ने पैसा क्यों लिया ये बताओ. आरबीआई ने पैसा क्यों लिया? आरबीआई को किस चीज की जरूरत होगी रीमा सिंह? आरबीआई को किस चीज की जरूरत? आरबीआई को पैसों की जरूरत क्यों होगी? नो गायकवाड. अरे सिंपल सा लॉजिक है. अगर आरबीआई बोरो कर रहा है कमर्शियल बैंक से तो कमर्शियल बैंक के पास तो लिमिटेड पैसा है. मान लीजिए कमर्शियल बैंक के पास 10,000 करोड़ है. कमर्शियल बैंक है 10,000 करोड़. ये 10,000 करोड़ बाहर मार्केट में दे देगा कमर्शियल बैंक. ठीक है. अब आरबीआई चाहता नहीं कि ये पैसा मार्केट में जाए, तो आरबीआई क्या करेगा? कमर्शियल बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है रिवर्स रेपो रेट को उससे ज्यादा बढ़ा देगा. मतलब अगर कमर्शियल बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है तो आरबीआई क्या करेगा? रिवर्स रेपो रेट को 6.5% पे ले आएगा. अगर रिवर्स रेपो रेट 6.5% पे हो गया तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा? वो बाहर लेंड करने की बजाय वो आरबीआई को लेंड कर देगा. वो बोलेगा ठीक है, हमें तो पैसा कमाने से मतलब है. कमर्शियल का मतलब है प्रॉफिट ओरिएंटेड. आई वांट टू मेक मनी, टेल मी हाउ कैन आई मेक मनी. If I am making money, commercial bank is lending to Reserve Bank of India at a certain rate of interest, and that rate of interest is 6.5%. Obviously, commercial bank
कमर्शियल बैंक जो है वो क्या कर रहा है, कमर्शियल बैंक जितना बाहर दे के पैसा कमाता उससे ज्यादा पैसा आरबीआई से कमा लेगा। और आरबीआई का क्या इंटरेस्ट है, आरबीआई का इंटरेस्ट ये है कि मार्केट में मनी सप्लाई कम होना चाहिए। तो जब भी आप देखो रिवर्स रेपो रेट बढ़ते हुए, whenever you see reverse repo rate increasing, just understand that RBI does not want commercial banks to lend money outside. It does not want commercial banks to lend money in the market. It wants commercial banks to give the money to Reserve Bank of India. Commercial bank have to understand the indication given by RBI. तो commercial banks RBI को देंगे और automatically 6.5% पे RBI जो है ये बोरो कर लेगा। दिस इज व्हाट हैपेंस, ये चीज होती है। तो ये चीज इंक्लूड हो जाती है इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में, इसको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। तो अब मैं दो स्टेटमेंट्स बोलूंगा, बताइएगा ट्रू या फॉल्स। इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट, आई रिपीट, इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट डिक्रीजेस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। बताओ, इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट डिक्रीजेस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट सुनिए। सो लिसन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट बोथ शेयर inverse relationship with inflation. Repo rate and reverse repo rate both share inverse relationship with inflation. दोनों का inverse relationship है inflation के साथ। बताओ, A ट्रू है, B फॉल्स है, C छोड़ो, C D छोड़ो, गलती से दब गया मुझसे वो। फॉल्स कैसे हो सकता है ये? अगर रेपो रेट बढ़ता है तो मार्केट में मनी सप्लाई कम होता है या बढ़ जाता है? अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। अगर रेपो बढ़ता है तो यस, अगर रेपो रेट बढ़ता है तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगा। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है तो भी मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगा। अगर रेपो रेट बढ़े तो भी मार्केट में मनी सप्लाई कम हो रहा है, रिवर्स रेपो बढ़े तो भी मार्केट में मनी सप्लाई कम हो रहा है। तो इनवर्स रिलेशनशिप हो गया ना। Repo rate and reverse repo rate are inversely proportional to money supply. Inverse relationship between money supply. This statement is absolutely true. ये statement बिल्कुल 100% सच है। आपको ये ध्यान रखना है that repo and reverse repo rate are this. तो reverse repo rate की definition देखिए, as the name suggests, is the opposite of repo operation. It implies that commercial banks buy G-Secs, government securities from the RBI, thus lending money to it with an inbuilt clause of repurchase. This is also in the short term. ये short term में होता है। Currently the policy repo rate is 6.25% and reverse repo rate is 6%. It totally depends. Together repo and reverse repo is called as liquidity adjustment facility. Repo और reverse repo सिर्फ इन दो रेट्स को liquidity adjustment facility का नाम दिया जाता है। They are termed as liquidity adjustment facility. इस चीज को ध्यान रखिएगा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को एडजस्ट करने की फैसिलिटी में हम दो रेट्स का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज टू रेट्स, द फर्स्ट इज रेपो रेट एंड द सेकंड इज रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट दो रेट्स हैं जो कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में लाए जाते हैं। दे आर ब्रॉट इन एज अ पार्ट ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। Is this concept crystal clear to all of you? क्या रिवर्स रेपो रेट आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर है? प्लीज टेल मी। हाँ जी बताओ, क्रिस्पिन हबीब। यस, तो आप ये चार्ट देखिए, मैंने आप लोगों के रेफरेंस के लिए चार्ट इंक्लूड करा हुआ है। आरबीआई की वेबसाइट से लिया गया चार्ट है। ये चार्ट देखो, रेपो और रिवर्स रेपो। तो ये ब्लू लाइन जो है ये रेपो की लाइन है, रिवर्स रेपो जो है ये रेड लाइन है। एंड आप देख सकते हैं किस तरीके से रेपो रेट इंक्रीज हुआ, फिर थोड़ा कट हुआ, फिर और कट हुआ, कट होते 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 नीचे आया, फिर हल्का सा बढ़ा, फिर यहाँ तक पहुंच गया। अभी रिसेंटली मार्च में 10 दिन पहले जो रेपो रेट चेंज हुआ है, मॉनिटरी रिव्यू हुआ है, उसमें रेपो रेट कम किया गया है। रेपो रेट हैज बीन रिड्यूस्ड। इस वक्त रेपो रेट कितना कर दिया गया है? व्हाट इज द न्यू रेपो रेट?
After the recent monetary policy review by the Reserve Bank, what is the new repo rate? It is 4.4%. 4.4% का रेपो रेट है. उसी तरीके से रिवर्स रेपो रेट में आप देख सकते हैं, इसमें भी काफी वेरिएशंस रहे हैं. देयर हैव बीन मल्टीपल वेरिएशंस एज अ पार्ट ऑफ रिवर्स रेपो रेट. रिवर्स रेपो रेट को मद्देनजर रखते हुए भी कई सारे वेरिएशंस रहे हैं, राइट. दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स रेपो रेट. दिस इज द फिफ्थ टूल. 5 टूल्स करे हैं. पहला है कैश रिजर्व रेशो, दूसरा है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, तीसरा है बैंक रेट, चौथा है रेपो रेट, पांचवा है रिवर्स रेपो रेट. छठा जो है आखिरी, उसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस. आई रिपीट, दिस इज कॉल्ड एज ओपन मार्केट ऑपरेशंस. ओपन मार्केट ऑपरेशंस किस चीज से होता है? ये आखिरी क्वांटिटेटिव टूल है, इसको ध्यान से समझिएगा. ओपन मार्केट ऑपरेशंस को, ओपन मार्केट ऑपरेशंस किस चीज से ऑपरेट करते हैं? OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस. आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्लूडेड है यहाँ पे आरबीआई में. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज व्हिच आर बॉन्ड्स, राइट. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहती है. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वर्थ 15,000, 20,000, 25,000 करोड़, इतने की इनके पास आरबीआई में ये चीज होती है. सो आरबीआई हैज दिस. If RBI has to tweak the money supply in the economy, I repeat, if RBI has to tweak the money supply in the economy, and RBI has run out of options, RBI has used all the possible options like CRR, SLR, policy rates, repo, reverse repo, bank rate, ये सब यूज कर लिया और यूज नहीं करना चाहते, मतलब और रेट्स को फ्लक्चुएट नहीं करना चाहते वो, और छेड़ना नहीं चाहते रेट्स को, तो वो क्या करेंगे? उनके पास एक छठा ऑप्शन दिया है जिसको कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस. तो आरबीआई के हाथ में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है. आरबीआई क्या करेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू मार्केट में मनी सप्लाई कम करने की कोशिश करेगा. तो इसको कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस. व्हाट आरबीआई विल डू, इट विल यूज G-Secs, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को यूज करा जाएगा थ्रू गिल्ट डिविजन्स ऑफ बैंक्स. हर बैंक की ना एक गिल्ट डिवीजन होती है. आप कभी देखिएगा पीएनबी गिल्ट, एसबीआई गिल्ट, जो बड़ी ब्रांचेस होती है उसमें गिल्ट की डिवीजन होती है, या गिल्ट का एक अलग ऑफिस होता है. तो गिल्ट डिवीजन में जाके कभी पूछना कि क्या होता है, मतलब कैसे ऑपरेशंस चलते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, व्हाट डू यू गेट? यू बेसिकली गेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओवर हियर. गिल्ट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मिलती है. सो गिल्ट के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मिलती है. एसबीआई गिल्ट्स या पीएनबी गिल्ट्स में आप जाके पूछ सकते हैं. तो मान लीजिए आरबीआई चाहता है कि 10,000 करोड़ से मनी सप्लाई कम हो जाए, तो गिल्ट डिवीजन में वो 10,000 करोड़ रुपए की सिक्योरिटीज छोड़ेगा और गिल्ट डिवीजन से वो इशू हो जाएंगी लोगों के पास. इट विल बी इशूड टू पीपल. लोग इसलिए खरीदेंगे सिक्योरिटीज क्योंकि सरकारी सिक्योरिटीज है, सेफ है. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, वो सेफ है. तो व्हेन पीपल विल बाय दीज सिक्योरिटीज वर्थ 10,000 करोड़, तो मार्केट में मनी सप्लाई 10,000 करोड़ से कम हो जाएगा और ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन, इन्फ्लेशन वुड रिड्यूस. इन्फ्लेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा. और जब आरबीआई को मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज करना होगा, तो वो इन्हीं सिक्योरिटीज को रिडीम कर देंगे, बोलेंगे कि आप आओ सिक्योरिटीज दो, हम आपको पैसे दे देते हैं इंटरेस्ट के साथ. दिस इज समथिंग व्हिच इज देयर. सो व्हाट हैव वी इंक्लूडेड ओवर हियर? वी हैव इंक्लूडेड दिस काइंड ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग that this is called as open market operations. I repeat, this is called as open market operation. तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि आपने अपनी सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में फेंक दी है. इट इज अवेलेबल फॉर एवरीवन टू बाय. दैट इज कॉल्ड एज ओपन मार्केट ऑपरेशंस. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? दीज आर कॉल्ड एज ओपन मार्केट ऑपरेशंस. तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस कैन बी ऑफ एनी टाइम लिमिट, 6 months, 9 months, 1 year, डिपेंडिंग कि उसे सरकार ने कितने टाइम के लिए ओपन करा हुआ है. दे आर कॉल्ड एज ओपन मार्केट ऑपरेशंस. तो अब आप पढ़िए ओएमओ को. ओएमओ आपको क्लियर हो जाएगा. आरबीआई ट्रांजैक्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम टाइम टू टाइम विद एन एम टू अब्सॉर्ब और इंजेक्ट फंड्स इनटू द बैंकिंग सिस्टम. दिस इज डन ऑन क्वार्टरली basis. When RBI sells G-Secs, government securities, it ends up absorbing excess funds lying with the banks. Banks के पास जितने excess funds पड़े हुए हैं, it ends up absorbing those funds. How? कि उनको सिक्योरिटीज इशू करी और बैंक से पैसा ले लिया. अब बैंक के पास पैसा है ही नहीं लेंड करने के लिए. ऑन द कॉन्ट्री, when it buys G-Secs और लार्ज स्केल, जब वो खरीदता है G-Secs तो वो पैसा देता है, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा. It ends up injecting funds into the banking system.
बाइंग ऑफ G-Secs इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव ईजिंग। जब आरबीआई सिक्योरिटीज खरीदेगा तो पैसे देके खरीदेगा, तो क्वांटिटी को ईज कर रहा है, मनी सप्लाई को बढ़ा रहा है। और जब आरबीआई इशू करेगा तो मनी सप्लाई को कम कर रहा है, क्वांटिटेटिव, इट इज मेकिंग क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई डिफिकल्ट। दिस इज कॉल्ड एज ओपन मार्केट ऑपरेशंस, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो गाइस हमने 6 टूल्स करे, वी हैव डन 6 टूल्स स्टार्टिंग विद रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, CRR, SLR। उसके बाद मैंने आपको बताया बैंक रेट, फिर बताया रेपो रेट, फिर बताया रिवर्स रेपो रेट, उसके बाद छठा बताया ओपन मार्केट ऑपरेशंस। आई रिपीट, वी हैव डिस्कस्ड ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इन सब की जो एक्टिविटी है ये आपको क्रिस्टल क्लियर रहेगी। एक चार्ट मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए बनाया हुआ है, आई हैव मेड अ चार्ट फॉर योर कन्वीनियंस। यू विल इंस्टेंटली बी एबल टू रिवाइज इन लेस देन 5 मिनट्स एज टू हाउ डज दिस वर्क। ये देखिए, ये आप लोगों के लिए चार्ट है। ये सारे क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं वी which can be easily understood from the following table. CRR SLR इंक्रीज और डिक्रीज का क्या इम्पैक्ट होगा? CRR SLR इंक्रीज करता है तो ये मनी सप्लाई को कम कर देगा और इन्फ्लेशन को कम कर देगा। अगर CRR डिक्रीज करता है तो ये मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देगा और इन्फ्लेशन को बढ़ा देगा। This is the best possible revision source for all of you. You will not find this anywhere else. Only I am giving this to you. So please make sure that you revise these things in a proper fashion. आप इसे ढंग से रिवाइज करें। All right, guys. So here we come towards the end of this class. जिस तरीके से हमने ये कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसी तरीके से हम और भी कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे। We have been revising multiple concepts. कल हमारी क्लास होगी इसी टाइम पे। ये क्लास का लिंक है, दिस इज द लिंक टू द क्लास। सब्सक्राइब टू दिस लिंक, इस लिंक पे सब्सक्राइब करें। ये लिंक जो मैंने यहाँ पे पिन करा हुआ है, दिस इज द 4th पार्ट, ये चौथा पार्ट है। आज हमने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा है, दिस इज पार्ट 3। कल हम और नया टॉपिक पढ़ेंगे, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू अटेंड द क्लास। मेनी स्टूडेंट्स कम लेट, it's a humble request, please don't be late, please join on time। 12:15 बजे ज्वाइन कर लिया करिए and please make sure that you attend the entire class in a proper fashion। this will be the most useful class। और आपको आज की क्लास से 2 सवाल मिल जाएंगे पीटी में, मेरी गारंटी है। आपको आज की क्लास से 2 सवाल मिल जाएंगे। You will get 2 questions in prelims। All right, guys, so this is tomorrow's class। Other than this, I have come up with a course on polity, complete syllabus on polity prelims and mains। कंप्लीट सिलेबस है पॉलिटी प्रीलिम्स का, मेंस का, ऑन unacademy.com/plus। इफ यू आर अ 2021 एस्पिरेंट तो ये जो कोर्स है ये 27 अप्रैल 27th of April से शुरू हो रहा है। द टाइमिंग इज मॉर्निंग 8 to 10 AM। You can join this course if you have to cover polity in a complete and a holistic fashion, including answer writing, including previous year paper analysis. Everything would be done. This is a complete one-stop shop when it comes to polity। Followed by that, the course on current affairs for 2020 aspirants, which is this year's aspirants। ये कोर्स शुरू हो रहा है 15 अप्रैल से, यानी कि 4 दिन बाद। This is starting on the 15th of April। The timing is evening time, 6 to 8 PM। You would be able to have the maximum input on this particular course। इसमें करंट अफेयर्स पिछले 16 महीने के कवर करूंगा मैं। I will be covering current affairs since January 2019 all the way up to April 2020। इस महीने तक के करंट अफेयर्स है, 16 महीने के करंट अफेयर्स कवर होंगे सारे सब्जेक्ट्स के, पॉलिटी, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, एज वेल एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सारे कवर होंगे। तो ये वन स्टॉप शॉप है करंट अफेयर्स का आप सबके लिए, जितने स्टूडेंट्स 2020 में अटेम्प्ट दे रहे हैं। इनफैक्ट 2021 वाले भी इसको अटेंड कर सकते हैं, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा क्योंकि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत होती है। इसके सिवा आई विल बी कमिंग अप विद मेनी न्यू कोर्सेज ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2-3 months। कंप्लीट इकोनॉमी ये आने वाला है बहुत जल्द, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें मेरे कोर्सेज के लिए। एंड इफ यू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय कोर्स, यूज माय कोड। आई रिपीट, यूज माय कोड। माय कोड इज AYU10। IU10 is my code। Use my code to subscribe for my courses। You will be eligible to get a 10% off on the subscription amount। अपने सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे 10% ऑफ मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज करें। मेरा कोड है AYU10। आई रिपीट, माय कोड इज AYU10। मेक श्योर यू यूज माय कोड फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय कोर्सेज, इट्स AYU10। आपको जितनी इंफॉर्मेशन है मेरे कोर्सेज के बारे में सब कुछ मेरे टेलीग्राम हैंडल से मिलेगी। सब्सक्राइब टू माय टेलीग्राम हैंडल। मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, टेलीग्राम हैंडल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन ओवर देयर। ऑलराइट गाइस, बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू टुमारो विद अनदर massive topic and a very, very important topic। Bye everyone, take care, all the best।